हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश विद नील वोरा पे। तो चलो करते हैं इस वीडियो को शुरू। ये बिक गई है गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो जैसे आपने इस वीडियो में देखा होगा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप किसी वर्ड को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस ना करो। तो इस वीडियो में हम 15 ऐसे वर्ड सिलेक्ट किए हैं जो सबसे ज्यादा कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स हैं। तो लेट्स डीप डाइव इनटू इट एंड लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे पहला हमारा वर्ड है ऑफन। Curiosity often leads to trouble. एक्चुअली इसको ज्यादातर लोग ऑफ्टन करके बोलते हैं। लोगों को लगता है द स्पेलिंग इज OFTEN, मतलब उसे ऑफ्टन बोला जाता है। बट यहां पर एक गलती हो जाती है, द T लेटर इज साइलेंट। तो अगर T साइलेंट है सो द प्रोनाउंसिएशन विल बी ऑफन। इसका मीनिंग है अक्सर। एग्जाम्पल, आई ऑफन गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, द T is silent and the pronunciation is often. सेकेंड वर्ड, अगर हम एक महिला की बात कर रहे हैं तो वर्ड फॉर इंग्लिश विल बी वुमन। अगर हम बहुत महिलाएं की बात कर रहे हैं तो वर्ड विल बी women. Votes for women. Now the tricky part comes over here. The pronunciation of this word is women. The spelling is WOMEN. Most of the people say it as women, but the pronunciation is women. So always remember, if there are many women, we call it as women. Guys, I'll tell you, this is the most mispronounced word I've come across. The word is poem. All in favor of skipping the poem? We used to write poems in the school when we were a kid. अब यहां पर हमें स्कूल में अक्सर बताया जाता था कि इसका pronunciation is poem. POEM. The pronunciation is poem, but actually it's wrong. The pronunciation is poem. Poem. So from now always remember, और जो भी सिर्फ poem कहते हैं, make sure you tell them that the pronunciation is poem. Now I'm sure you must be watching a lot of videos on YouTube, and if you feel like asking any doubt to the one who has made that video, you always feel like commenting below on that video. Now the confusion comes over here. अगर हम उसे कहते हैं कि इस वीडियो पर मुझे कमेंट करना है, that is wrong. इसका pronunciation is not comment, though the spelling is COMMENT, but the pronunciation is comment. Always remember, comment. So I request you all to comment down below what you have learned from this video. अब ऑब्वियसली आप घूमने गए हो, आपको भूख लगेगी और आपको अगर खाना खाने जाना है तो उस जगह को हम कहते हैं रेस्टोरेंट। Restaurant is insane. The problem arises when we use this word and pronounce this as restaurant. इंडिया में टिपिकली पाया जाता है, most of the Indians pronounce this word as restaurant. Actually the pronunciation of this word is restaurant. रेस्टोरेंट, तो जहां पर हम खाना खाते हैं उस प्लेस को कहते हैं रेस्टोरेंट, और जहां पर हम ठहरते हैं where we spend our night, that place is pronounced as hotel. Guys, अगर हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं so we always have to stay at that place, especially अगर हम 2 रात 1 रात या 2 से ज्यादा रातों के लिए जाते हैं. So the place where we stay is called as a hotel. So El Dorado Hotel Miami Beach. But again, there's a small error over here. इसका pronunciation, the word hotel is not pronunciation hotel. The pronunciation is hotel. Hotel. So the place where you stay when you go for a vacation is not called as hotel. It is called as hotel. Hotel. Now imagine that you are staying in a hotel. It's morning time. आपको भूख लगी है, जैसे ही आप उठते हैं, आपने ब्रश किया, you have had your bath. Now it's the time to have your breakfast. So यहां पर the confusion happens when as per the spelling we say BREAKFAST. Pronunciation is breakfast. FAST, obviously हम बोलेंगे fast, but this is the problem. The pronunciation of this word is breakfast. थोड़ा स्पीड में बोलना है, not breakfast, breakfast. Spelling is BREAKFAST, but the pronunciation is breakfast. Similarly, breakfast में अगर समझो आपने पिज्जा खाया, which is I'm sure many of your favorite food, the pronunciation of this word is not pizza, not pizza. The pronunciation is pizza. Pizza. So from next time when you go for a breakfast or you go to Domino's or Pizza Hut, you'll always say I've ordered a pizza. Pizza. चलो बात ब्रेकफास्ट की हो रही है, and for example, suppose you order an idli, and अगर आपको लगता है कि वो इडली की टेस्ट थोड़ा खट्टा है, you say it as sour. Sour frog. But actually, as per the spelling, it is SOUR. The pronunciation is sour. The spelling is SOUR. हम बोलते हैं sour, but the pronunciation is sour. So next time, if something is acidic in taste, अगर कुछ खट्टा है, you'll pronounce it as sour. Similarly, इडली की बात हो रही है, इडली के साथ हमें मिलता है सांबार. सांबार होता है एक बाउल के अंदर, but the problem is उसे हम बाउल नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं बोल.
Spelling is B-O-W-L. The pronunciation is bowl. So idli is sour. The sambar comes in a bowl. तो चलो अब आप रेस्टोरेंट में भी हो, आपने कह लिया the idli was sour, you got your sambar in a bowl. Now is the time to get your bill. तो बिल के साथ में आपको मिलता है रिसीट. You got a receipt? मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस उसे बोलते हैं रिसिप्ट. आप अपने मॉम डैड से पूछ लीजिए, यू आस्क योर मॉम डैड, योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे स्टिल प्रोनाउंस दिस एज रिसिप्ट. द प्रॉब्लम इज स्पेलिंग में पी आ जाता है, सो वी कंसीडर के उसे हमें रिसिप्ट बोलना है, बट द पी ओवर हियर इज साइलेंट. एज आई ऑलवेज से, इंग्लिश इज अ क्रेजी लैंग्वेज. सो काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्पेलिंग डिफरेंट है, लिखने का तरीका डिफरेंट है, बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. सो इन दिस वर्ड P is silent, so the pronunciation will not be receipt, the pronunciation will be receipt. Receipt. Similarly, अब आपने receipt मंगा लिया, now is the time to pay the money. अब आप अगर पैसे नहीं दे पाए या in general आप किसी को पैसे नहीं दे पाए, you're not able to give back the money to someone, so you are now in a debt. Credit card debt. Credit card debt. डेट मतलब इन हिंदी वी कॉल इट एज उधारी. द प्रोनाउंसिएशन अगेन सेम वे, रिसीट में जैसे बी साइलेंट है, इन डेट लेटर बी इज साइलेंट. सो द प्रोनाउंसिएशन विल नॉट बी डेब्ट, द प्रोनाउंसिएशन विल बी डेट. बी विल बी साइलेंट, हमेशा याद रखना. रिसीट में पी विल बी साइलेंट, इन डेट योर बी विल बी साइलेंट, सो द प्रोनाउंसिएशन विल बी डेट. डेट. ऑलराइट, तो आप रेस्टोरेंट से भी निकल गए हो, आपका खाना भी हो गया है. नाउ इज द टाइम टू वॉच द मूवी. अब आपको पता होगा, आप कोई भी मूवी देखते हो या कोई भी बुक पढ़ते हो, वो एक स्पेशलाइज कैटेगरी में फॉल करती है. इट फॉल्स इनटू अ स्पेशल कैटेगरी. तो उस कैटेगरी को हम कहते हैं जॉनरा. In the rock and roll genre. एक्चुअली द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड इज G-E-N-R-E. काफी लोग इसे जनरे, जनर कहते हैं, काफी लोग इसे जॉनर कहते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज genre. Genre means a particular category or a specialization of a book, literary work or a movie. For example, अगर आप कोई मूवी देखते हैं which has romantic genre in it, so we call it as a romantic genre. Similarly, thriller genre, horror genre. So always remember the pronunciation of this word is genre, though the spelling is G-E-N-R-E. अब ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको अगर मिलती है हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन. द वर्ड इज कूपन. Hold on, I got a coupon for that. अब यहां पर द ट्रिकीएस्ट थिंग इज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलवेज लर्न्ड और हर्ड द वर्ड प्रोनाउंसिंग एज कूपन. Because the spelling is C-O-U-P-O-N, we pronounce it as coupon, but actually it is absolutely wrong, and the most mispronounced word, the pronunciation is coupon. Coupon, not coupon. Always remember the pronunciation is coupon. तो चलो आते हैं हमारे लास्ट वर्ड पे. ये बिक गई है गवर्नमेंट. सही समझा आपने. काफी लोग इस वर्ड को गवर्नमेंट बोलते हैं, काफी लोग गवर्नमेंट बोलते हैं, बट एक्चुअली यहां पर जो एन है वो साइलेंट है. दो द स्पेलिंग इज G-O-V-E-R-N-M-E-N-T, द लेटर एन इज साइलेंट एंड द प्रोनाउंसिएशन इज गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट लाइक गवर्नमेंट आंटी. इट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. तो इस तरह से हमने सीखे 15 ऐसे वर्ड्स जो कॉमनली सभी लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं. सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू हियर एनीवन say these words or pronounce these words in this way, kindly request you to correct them, क्योंकि अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो ही लोग समझेंगे एंड इसी तरह से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टेल टू ऑल माई लर्नर्स, आप कोई भी अगर न्यू वर्ड पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप आप उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए गूगल पर. सेकेंड स्टेप, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. एंड थर्ड स्टेप, आप जो भी वर्ड सीख रहे हैं उसका एग्जाम्पल सेंटेंसेस अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बनाइए. उससे आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट वर्ड फॉरएवर. अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो. रिमेंबर, कमेंट नहीं बोलना है, कमेंट बोलना है. And for more such videos, please subscribe to our channel, क्योंकि ऐसे काफी सारा content हमने plan किया है. Lot of fun and lots of value coming up. So please subscribe to this channel and stay tuned.